बड़ी खबर आपको बता दें, व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बातचीत जारी है। रूस के साथ क्या शांति वार्ता स्थापित हो पाएगी? कोई रास्ता निकलेगा युद्ध रोकने का? ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत 6 यूरोपीय नेताओं के साथ ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में वॉशिंगटन में इस वक्त। Vladimir Putin came to American soil. This was a tremendous defeat for Donald Trump. No, it was really wonderful that he did it. It was a hard thing for him to do, to be honest with you. It was the opposite of what they said, but they said it. Now, if he didn't come, they'd say that was also bad for Trump. You know, there's no way. And there's just a great dishonesty of the press, and I think that's why it's lost its credibility. You know, its credibility is at an all-time low. We have a thing going on right now in D.C. We went from the most unsafe place anywhere to a place that now people, friends are calling me up, Democrats are calling me up, and they're saying, sir, I want to thank you. My wife and I went out to dinner last night for the first time in 4 years, and Washington, D.C. is safe, and you did that in 4 days. I'll tell you, it's safe. I had another friend of mine, he has a son who's a great golfer, he's on tour, and he came in 4th yesterday in the big tournament where Scotty Scheffler made the great shot, and he said his son is going to dinner in Washington, D.C. tonight. I said, would you have allowed that to happen a year ago? He said, no way, no way. He said, what you've done is incredible. And I think the people realize it. But the press says, he's a dictator, he's trying to take over. No, all I want is security for our people. But people that haven't gone out to dinner in Washington, D.C. in 2 years are going out to dinner. And the restaurants the last 2 days were busier than they've been in a long time. Thank you. I walked around yesterday with MTG. If you can walk around with DC with MTG and not be attacked, the city is safe. Yes. Right. Thank you, Mr. President. Last week you warned of what you called severe consequences if a 30-day ceasefire or any type of ceasefire were not agreed to by Russia. Will there be severe consequences? Does that change because of I don't think you need a ceasefire. You know, if you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. And I know that it might be good to have, but I can also understand strategically why, well, you know, one country or the other wouldn't want it. You have a ceasefire and they rebuild and rebuild and rebuild, and, you know, maybe they don't want that. But if you look at the 6 deals that we made peace and you know, long-term, long-running wars, I didn't do any ceasefires. Would I like the concept. You know, I like the concept of a ceasefire for one reason, because you'd stop killing people immediately, as opposed to in 2 weeks or 1 week or whatever it takes. But we can work a deal where we're working on a peace deal while they're fighting. They have to fight. I wish they could stop. I'd like them to stop. But strategically, that could be a disadvantage for one side or the other. But all of these deals I made without even the mention of the words ceasefire. Can you explain the decision to offer Ukraine Article 5-like security guarantees, but stop short of pushing for their full membership? Yeah, well, we haven't done anything on that yet. If you look back and you go back long before President Putin, it was always a statement that they would never allow Ukraine into NATO. So that was a statement that was made, but we haven't discussed any of that yet. We're going to be discussing it today, but we will give them very good protection, very good security. That's part of it. And the people that are waiting for us, they are, I think they're very like-minded. They want to help out also. Thank you, President Trump. The United States has already given hundreds of billions of dollars to this war effort in Ukraine. Biden. At best, it is a stalemate, and the killing continues. So, President Trump, how much more is the United States willing to give Ukraine? And President Zelensky, how much more do you want? Well, I'll start off just by saying we're not giving anything now. We're selling weapons. This is something before, I guess the number's well over $300 billion. That was under Joe Biden, a corrupt politician, not a smart man, never was. By the way, go back 40 years, he was not a smart man 40 years ago either, but now he's in particular bad. This was done by a corrupt administration that shouldn't have been in, and frankly, if the right results of the election were given,
If I were president, this war would have never taken place, and he would have been very happy because he would have liked to have seen. I mean, they went through hell. He went through hell. This war would have never happened, and the people that were killed, a couple of million people, a lot of people with soldiers and everything else, and the people that have been displaced and forced into other areas and other countries because of what's happened, none of that would have happened. And I'm just saying that he was a horrible president, whether it was the borders or this. He was just a horrible, corrupt president. Mr. President, You want to answer? I can. Thanks so much. So first of all, we have possibility now to buy weapon from the United States. We are thankful for this program and this opportunity. We are thankful for Europe. They pay for this. And through NATO program, for example, Pearl and etc. We have some programs where we can have some money to finance this. And this is a part, I think, it's not a part for the war and to defend us. It also will be a part for security guarantees, to strengthen our army, to rearm Ukrainian army. This is very, very important. And it depends how much money we need to rearm. For example, the question of air defense, we spoke about it with President Trump, and I'm happy that we have now bilateral decisions and we work on it with production, American production. Nobody in Europe has so many air defense like Patriots, for example. We need it very much, and this is also about defending. And I think, I think the good news, we make the best military equipment in the world by far. You mentioned the Patriots. How good are they? Systems. We have systems, they're literally 100% foolproof. And it's really like shooting two bullets, two bullets hitting each other in the air in a space like this. The chance is 100%. It's 99 to 100%. So we sell the equipment to NATO. And NATO does what, I don't know what the arrangement is that you have with, but I know that they want you to have the equipment. And we're getting the best equipment in the world, but they pay us for the equipment. Under Biden, it was just crazy what was going on. I believe the number is over 300. I think it could be $350 billion worth of equipment and money and everything else. And we've made more progress in settling this war in the last 2 months than they made in 4 years. This should have been settled a long time ago, but it should have never happened. Yeah, please. Mr. President, You pushed out on was there social any media. All right, Brian, go first. You pushed out on social. तो आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दोनों के बीच इस वक्त बातचीत चल रही है। बहुत अहम है, दुनिया भर की निगाह इस पर इसलिए बनी हुई है क्योंकि क्या शांति का मार्ग इस बातचीत के बाद निकलेगा। और जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो बहुत अहम हो जाता है कि ये जो बातचीत चल रही है सब ठीक रहा तो फिर त्रिपक्षीय बैठक होगी जिसमें पुतिन भी शामिल होंगे। पिछली बार आपने देखा था बैठक में क्या हुआ था। पुतिन ने कहा था कि अगली बैठक जो होगी वो मॉस्को में होगी, उस पर थोड़ा सा सहज हुए थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन बड़ा सवाल अब ये, क्योंकि दुनिया भर की निगाह है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद है, संजीव हमारे डेप्यूटी एडिटर इस वक्त। संजीव, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप ये बैठक फिलहाल, और वो भी 6 वैश्विक नेताओं को लेकर के पहुंचे, यूरोपीय नेताओं को लेकर के ज़ेलेंस्की, दबाव बन पाएगा, ये किस मोड में हो पाएगी। पिछली बार का अनुभव ज़ेलेंस्की का बुरा था। क्योंकि देखिए, हम ऐसे युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने 4थे साल में है और कई दफा लगा कि ये युद्ध हो सकता है कि तीसरे विश्व युद्ध में कहीं परिवर्तित तो नहीं हो जाएगा। ऐसे युद्ध के खात्मे की बात हो रही है। लिहाजा आप जिस तरह का जमावड़ा इस वक्त देख रही हैं व्हाइट हाउस में, वो अपने आप में बताता है कि कितनी संजीदगी से इस युद्ध को पूरा यूरोप फॉलो कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन की बातें और राष्ट्रपति पुतिन के कारनामे, इन पर अमूमन जो यूरोपियंस हैं उनको विश्वास नहीं है और उन्हें यह लगता है कि अगर इस शांति समझौते में प्रिवेल करने की इजाजत दे दी गई राष्ट्रपति पुतिन को, तो फिर राष्ट्रपति पुतिन अगला निशाना यूरोप के जो दूसरे देश हैं उसको बनाएंगे। वो अगर अपनी मनमानी चला लेते हैं, और ऐसे में जबकि करीब करीब 20-22% हिस्सा जो है वो पहले से कब्जा कर चुके हैं यूक्रेन का, और उसके अलावा भी उन्हें कुछ और मिल जाता है शांति समझौते के तहत, तो फिर तो उनका मन बढ़ जाएगा और उसके बाद अगले निशाने पर पोलैंड होगा। ये एक डर है यूरोपीय नेताओं में। थोड़ा सा संजीव सुनवा दें जरा एक बार फिर, क्या बातचीत ज़ेलेंस्की और ट्रंप की। I'm glad you asked me that question. We're going to stop mail-in ballots because it's corrupt.
You know, when you go to a voting booth and you do it the right way and you go to a state that runs it properly, you go in, they even ask me, they asked me for my license plate, for identity. I said, I don't know if I have it. He said, sir, you have to have it. I was very impressed, actually. But it's very hard to cheat with mail-in voting. As you know what happens in California, it's so corrupt, where some people get 5, 6, 7 ballots delivered to them. Now, we got to stop mail-in voting, and the Republicans have to lead the charge. The Democrats want it because they have horrible policy. If you have mail-in voting, you're not going to have many Democrats get elected. That's bigger than anything having to do with redistricting, believe me. And the Republicans have to get smart. We're not going to have a country. I said for a long time at rallies, you need borders and you need free and fair elections. Those two things. Otherwise, you don't have. We have strong borders now. In 90 days, Mr. President, we didn't have one. तो ये पूरा जो टॉपिक है वो बदलता नजर आ रहा है। संजीव, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये दिशा बदलती नजर आ रही है क्या बातचीत की? देखिए, अभी तो इस वक्त वो जो बात कर रहे हैं वो दरअसल अमेरिका में जो एक मेल वोटिंग होती है, हमारे यहाँ भी होती है, और इसके अलावा जो वोटिंग मशीन्स हैं वहां पर ईवीएम जैसे हमारे यहाँ है, तो ट्रंप ईवीएम के भी खिलाफ है और मेल वोटिंग के भी खिलाफ हैं, और उसी बारे में वो कह रहे हैं कि मेरा बस चलेगा तो मैं इसको बदल दूंगा, इसमें गड़बड़ होती है। खैर, ये अपने आप में एक बहस का विषय भी है कि दुनिया के जो बाइडेन की बात आते ही उन्होंने इसका जिक्र शुरू कर दिया। जी हाँ, और वो बार बार इस बात को कहते रहते हैं। दुनिया का सबसे इलेक्ट्रॉनिकली एडवांस्ड कंट्री कह रहा है कि ईवीएम पर हमें विश्वास नहीं है, उसके राष्ट्रपति। लेकिन जो बात सामने अभी हम लोग कर रहे थे कि एक इतनी बड़ी लड़ाई जो है, जो इतने दिन खिंच गई है, वो जाहिर है कि इस बात को लेकर खिंची है कि we will discuss with our partners. Zelensky It depends on the big countries, on the United States, on a lot of our friends. Mr. President, we're going to commit American troops to that NATO-like protection in order to get President Zelensky to advance things. Well, I don't know if you define it that way, but NATO-like, I mean, we're going to give, we have people waiting in another room right now. They're all here from Europe, biggest people in Europe, and they want to give protection. They feel very strongly about it, and we'll help them out with that. I think it's very important. I think it's very important to get the deal done. You've been involved to defeat Putin in Ukraine since your first day in the administration. What would you say to the Ukrainian people right now who are suffering under the Russian attacks and hoping that the American people will stand with them? Well, I know Ukrainian people. I've known many over the years. They're great people. They're smart. They're energetic. They love their country. I mean, they love their country, and we want to get this war ended. That's all I can do. I love the Ukrainian people, but I love all people. I love the Russian people. I love them all. I want to get the war stopped. Very important. Mr. President, was there any aspect of your discussion with Vladimir Putin that left you disappointed? Look, we just spoke to, I was just telling the president, I just spoke to President Putin indirectly, and we're going to have a phone call right after these meetings today. And we may or may not have a trilat. If we don't have a trilat, then the fighting continues. And if we do, we have a good ये chance. ऐसा लगता है अभी जैसे वोलोदिमीर जेलेंस्की बोल रहे थे, बीच में इंटरप्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, शायद वो इस कोशिश में है कि वो कुछ ऐसा ना बोल जाएं कि जिससे ये जो बातचीत पटरी पर चल रही है इधर उधर हो जाए, या फिर एक सम्मान के ऊपर बात आ जाती है, वो अपना वैसा रवैया ना दिखा दे। ये कोशिश आपको डोनाल्ड ट्रंप की नजर आती है क्या? वो लीड करते नजर आ रहे हैं कि आप कम बोलिए, मैं देखता हूं। जी हाँ, देखिए, जो संवेदनशीलता है इस पूरे मसले की, शायद वो ये बात ही कर रही है। आखिरी शब्द जो बोल रहे थे और हम लोगों ने सुना, उसमें वो कह रहे थे कि वी मे हैव अ ट्राइलैटरल, वी मे नॉट हैव अ ट्राइलैटरल, यानी कि अगर संभव हुआ तो हम फिर त्रिपक्षीय वार्ता करेंगे, अगर संभव नहीं हुआ तो हम त्रिपक्षीय वार्ता नहीं करेंगे। अब सोचिए कि आप उस देश को शामिल करने के लिए तैयार नहीं हैं जिस देश के मुस्तकबिल के बारे में आप फैसला करने जा रहे हैं, और यूक्रेनियन पीपल आखिरकार क्या सोचेंगे। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ी जरूरत जो यूक्रेन की है वो है इस युद्ध का खात्मा। उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, वहां चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन और रिबिल्डिंग में बहुत काम होना है, और ऐसे में जाहिर है कि ये युद्ध खत्म हो, ये केवल ट्रंप की जरूरत नहीं है बल्कि पूरी मानवता की जरूरत है। और पुतिन को कंटेन कैसे किया जाए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि केवल यूक्रेन का युद्ध खत्म करके जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है, विस्तारवादी मिजाज जो है
पुतिन का, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूक्रेन के बाद जो पूर्वी यूरोप के दूसरे देश है और सबसे ज्यादा निशाने पर पोलैंड आता है, तो क्या वहां से होता हुआ यूरोप के बाकी हिस्से में तो नहीं फैल जाएगा? और इन सब पर लगाम लगाने के लिए आप देख रही हैं कि कितने देश के वहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री स्टारमर ब्रिटेन के बैठे हुए हैं, चांसलर मर्ज जर्मनी के बैठे हुए हैं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बैठी हुई हैं वहां पर, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब्स, और देखिए फिनलैंड एकदम सामने हो जाता है रशिया के, और वो भी अगला निशाना हो सकता है। और इन सबों की चिंता यही है कि आखिरकार राष्ट्रपति पुतिन को एक ऐसे समझौते के लिए तैयार किया जाए जिसमें न केवल यूक्रेन का भला हो बल्कि पूरे यूरोप का भला हो। लेकिन आप जो कह रहे हैं संजीव कि हो सकता है कि ये ट्राइलैटरल ना हो, ये बाइलैटरल ही हो, लेकिन ज़ेलेंस्की क्या उस बात के लिए मानेंगे? क्योंकि हम इससे पहले भी देख चुके हैं ज़ेलेंस्की झुके नहीं है। भले एक दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने वो पूरी तरीके से झुकना स्वीकार नहीं किया। वो देखा है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। इनफैक्ट जब वो आए थे पिछली बार वॉशिंगटन डीसी और राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी, तब भी वो अपनी बातों पर कितना अड़िग थे। भले बाद में थोड़ा बहुत उन्होंने सॉफ्ट नेचर अपनाने की कोशिश की, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो हर बात के लिए हाँ करें, ऐसा संभव है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई अदालत नहीं होती है जो न्याय करती है, ताकत ही सब कुछ होती है। दो चीजें तो मान करके यहां पहुंचे हैं ना ज़ेलेंस्की। पहली तो यह कि उनकी नेटो में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि यह बात राष्ट्रपति ट्रंप ने कही है, नो नेटो फॉर यूक्रेन। और दूसरी बात कि जो डॉनबास का एरिया है जिस पर अभी काबिज है 70% इलाके में पुतिन और उनकी सेना, वो उनको वापस नहीं आने जा रही है। क्राइमिया जो कि 2013 में ले लिया गया था, वो भी वापस नहीं आने वाला है। तो वो अच्छी तरह से मानते हैं कि यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा जा चुका है, बाकी का हम बचा ले, अपने लोगों को आने वाली दुश्वारियों से बचा ले। वो इस बात को नेगोशिएट करने के लिए वहां पहुंचे हैं और देखना है कि उसमें वो सफल हो पाते हैं या तो नहीं। क्या हासिल होना होगा इस लगभग 4 साल हो जाएंगे इस युद्ध को, हासिल क्या हुआ? वो तो वही पोजीशन है कि पहले भी नेटो में शामिल होने को लेकर युद्ध भड़कता है और उसके बाद अब भी वही स्थिति कि आप शामिल नहीं होंगे, ये तय है। अब सब कुछ एक तरीके से लुट गया। स्पष्ट तो कर ही दिया है राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बैठक के पहले भी, और इसके पहले जो उनकी फोन कॉल पर बातचीत हुई थी ज़ेलेंस्की से और कई दफे हुई थी, जिसमें उन्होंने बड़ा साफ कर दिया है कि आपसे जो ले लिया गया है अब शायद वो आपको वापस नहीं मिलेगा। और ऐसे में कह सकते हैं कि यूक्रेन एक ठगा सा रह जाएगा इस पूरे युद्ध के खात्मे के बाद। लेकिन अब मसला केवल यूक्रेन का तो रह नहीं गया है, पुतिन को कंटेन करना है। पुतिन के पीछे चीन खड़ा है, और ऐसे में ये जो वैश्विक संबंध नए तरीके से परिभाषित हो रहे हैं, जिसमें खतरा यह है कि क्या रशिया, इंडिया, चाइना का एक जो ट्राइलैटरल एक्सिस है वो भी बनता चला जा रहा है। इन सब तमाम खतरों को देखते हुए जरूरी है कि यूरोप और खास तौर पर जो नेटो है अपने आप को संभाले और एक नए युद्ध में न घुसे, जैसे कि 4 साल से वो चला आ रहा है। तो क्या अगर शांति स्थापित होगी तो सीधा सवाल फिर संजीव, ये व्लादिमीर पुतिन की शर्तों पर शांति स्थापित होगी, ये तय नजर आ रहा है? जी हाँ, वो आप ये समझ लीजिए कि वो जो रामचरितमानस की बातें हैं, समर्थ को नहीं होत दोष गुसाई, वही चल रहा है। वो जो सामर्थ्यवान है, वन हु इज स्ट्रांग, उसकी चलेगी। और यहां पर जो स्थिति आज रात बातचीत में होगी, वो तमाम नेता जो यहां मौजूद हैं वो इस बात को मान करके चलेंगे कि जितने जमीन पर कब्जा इस वक्त हो चुका है रूस का, वो जमीन वो छोड़ने नहीं जा रहा है। फिलहाल नेटो में एंट्री भी जो है वो संभव नहीं है यूक्रेन के लिए। इसके बाद से अब समझौते की शर्तें शुरू होती हैं। संभव है कि हो सकता है कि कुछ इलाके वो बचाना चाहते हैं यूक्रेन, कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि बिना लड़े ले लेना चाहते हैं पुतिन, वो उन इलाकों को लेने न दे व्हाइट हाउस के इस बैठक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप। ये तमाम ऐसी बातें हो सकती हैं। लेकिन देखिए, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि पुतिन चाहे कितना भी ब्रवाडो दिखा दें, स्ट्रांग अपने आप को दिखाएं, लेकिन यूक्रेन को आउटराइट हराने में वो भी सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके पीछे नेटो है। तो वो भी कहीं ना कहीं किसी कॉम्प्रोमाइज की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन वो प्रिवेल करेंगे, ये बात तय है, क्योंकि सामने एक कमजोर देश यूक्रेन है। अच्छा, ये जो 6 नेता पहुंचे हैं यूरोपीय देशों के, ये किस तरीके से ये पूरी बैठक आयोजित की गई? संजीव, जरा इसका बैकग्राउंड बताइए, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि एक दबाव बनाने की रणनीति के तहत ज़ेलेंस्की पहुंचे और सभी यूरोपीय नेताओं को साथ लेकर के पहुंचे। हालांकि वो अगर हम देखें बॉडी लैंग्वेज में वो दबाव नजर नहीं आ रहा, लीड करते नजर आ रहे हैं अपने हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप।
देखिए, लोगों को इस बात का शक हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल नोबेल पीस प्राइज को एंगल कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई सच्चाई है और ये हकीकत भी है, तो कोई ऐसा समझौता तो नहीं करवा देंगे जो कि यूरोप के भविष्य के लिए बड़ा खतरनाक होगा। फौरी तौर पर भले ही युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन आने वाले दिनों में यूरोप को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। कहीं ऐसा तो समझौता नहीं हो जाएगा। लिहाजा जब अलास्का की बैठक हो गई, उस बैठक के बाद जेलेंस्की को फोन किया राष्ट्रपति ट्रंप ने, तो जेलेंस्की साहब ने अपने तमाम साझेदारों को फोन मिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने स्टामर साहब को फोन किया ब्रिटेन, उन्होंने चांसलर मर्ज को किया जर्मनी में, उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी को किया, उन्होंने सबों को फोन करके ये कहा, इमैनुअल मैक्रों को कहा कि देखिए भाई ऐसा है कि ये जो होने जा रहा है, अब आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि हमारे साथ अगर अन्याय होगा तो आप लोग भी बचेंगे नहीं। और ऐसे में एक कोएलिशन ऑफ द विलिंग का फॉर्मेशन हुआ। ये जो कोएलिशन ऑफ द विलिंग है, ये जो गठबंधन है, ये है उन यूरोपीय देशों का जो बड़े प्रमुख यूरोपीय देश हैं जो अपने हितों को लेकर जरा चिंतित हैं। याद कीजिए आशा, वो दौर विश्व इतिहास का जब यूरोप ही सबसे ताकतवर हुआ करता था, और आज स्थिति उनकी ये है कि वो नेटो पर अपनी सुरक्षा के लिए बड़े आश्रित हैं। और आपने देखा था पीछे नेटो की बैठक में कितना मनुहार किया जा रहा था ट्रंप साहब का कि आप हमें सुरक्षा प्रदान करते रहिए। तो ऐसे में कहीं पुतिन साहब की वो तमाम बातें न मान ले ट्रंप, इसीलिए ये कोएलिशन ऑफ द विलिंग जो है, इसने तय किया कि हम भी जाएंगे जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस। जेलेंस्की को बुलाया गया था व्हाइट हाउस में, इन सबों को नहीं बुलाया गया था, लेकिन सब लोग यहां पहुंच गए हैं। और यहां पहुंच करके इसके बाद जैसा कि अभी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि मैं इस बैठक के बाद फोन मिलाऊंगा पुतिन को, तो अपनी बातें वो वहां रख देंगे कि देखिए इन शर्तों के बियॉन्ड आप बात मत कीजिएगा। अब वो कितना पुतिन मानते हैं, क्योंकि वो भी अपने टफ नेगोशिएशन के लिए जाने जाते हैं, ये हमें सुबह पता चलेगा। अभी दो बातें हमने देखी, एक तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही, वो दो चीजें कह रहे हैं कि पुतिन भी युद्ध नहीं चाहते उन्होंने कहा, और वो ये भी कह रहे हैं कि पुतिन अमेरिकी धरती पर आए, उनके लिए आसान नहीं था, उन्होंने बड़ा टफ कदम उठाया। मतलब उनकी तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं। ये पिछली जो बैठक हुई है उसका असर लग रहा है कि क्योंकि उस बैठक से एक जो लबो लुआब निकला जो विशेषज्ञों के मुताबिक कि ऐसा लगा कि पुतिन ने बाकायदा ट्रंप के ऊपर कहीं ना कहीं एक लीड लिया, वो चाहे उनकी सोच को प्रभावित करने को लेकर हो या किसी भी स्थिति में। वो नजर आया क्या आपको उनके बॉडी लैंग्वेज में, आज जिस तरीके से वो समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बीच में रोक रहे हैं, या फिर जो एक पूरा पैरामीटर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उन स्थितियों को देखते हुए लगता है संजीव आपको यही हो रहा है, पुतिन का असर है? देखिए कहां पर मिस आउट कर गए ट्रंप, और जिसको पॉइंट आउट किया गया और कहा गया कि दरअसल पुतिन आप पर प्रिवेल कर गए अलास्का में, वो ये था कि आपने फौरी तौर पर लड़ाई नहीं रुकवाई। ये बात जो है सबसे ज्यादा अखर गई उन तमाम लोगों को जो ये देख रहे हैं कि आज भी हमले हुए हैं, आज भी खेरसॉन में अटैक्स हुए हैं, ज़पोरिज़िया पे अटैक हुई हैं, और यूक्रेन के ये वो इलाके हैं जो लगातार अटैक झेलते आ रहे हैं, और खार्किव में अटैक हुए हैं, और आज भी अटैक हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं संजीव, जरा बताइए फिर ऐसी बातचीत का क्या मतलब? ट्रंप बात करके आते हैं, पुतिन कल रात इनफैक्ट सबसे बड़ा जो दूसरा शहर है खार्किव, वहां पर उन्होंने हमले किए हैं। आज कुछ घंटे पहले ये हमला हुआ है, और ट्वीट किया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कि देखिए हम बातचीत के लिए जा रहे हैं। अभी कुछ घंटे पहले आया है उनका ट्वीट, और ये देखिए कि अभी भी हमले कर रहे हैं वो, जबकि इस हमले को जस्टिफाई करते हैं पुतिन ऐसे कि जब तक हो नहीं जाता है तब तक तो हम युद्धरत हैं। अब यही काम करना था अमेरिका को कि देखिए बातचीत शुरू हो चुकी है और आप हमले रोक दीजिए, लेकिन वो ऐसा अलास्का में नहीं करवा पाए। और यही कहा गया उनके विरोधियों के द्वारा कि जब आप कुछ करवा ही नहीं पाए तो आपने अलास्का में वो रेड कारपेट बिछवा दिया, और वो जो एक तस्वीर दिखी कि अमेरिका के सोल्जर्स जो थे वो रूसी प्लेन के नीचे में रेड कारपेट बिछा रहे थे, उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्हें लगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे जो सैनिक हैं वो दूसरे के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो हमारी कोई भी बात मान करके नहीं गए हैं। लिहाजा उन्हें बहुत झेलना पड़ा। अब आज एक चुनौती है ट्रंप के लिए कि आज वो किसी तरह से अपने यूरोपीय दोस्तों को यह कन्विंस करे कि वो हारे नहीं हैं और एक अच्छी डील वो पुतिन से लेके आने में सक्षम होंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए अभी बातचीत में वो कह रहे थे कि देखिए जो हमारे विरोधी है अमेरिका में, कल को अगर पुतिन कहेंगे कि मैं मॉस्को भी देने के लिए अमेरिका को तैयार हूं, तब भी मेरी तारीफ नहीं करेंगे। लेकिन ये बोल बोल करके उन्होंने अपने ऊपर एक दबाव बना लिया है आशा, और इस दबाव के तहत अब देखना यह है कि ये जो यूरोपीय देश है इनको कौन सी सिक्योरिटी गारंटी मिलती है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि ये तमाम लोग ये चाहते हैं कि हम पर पुतिन हमला न करे।
राइट तो ये सारा खेल जो है वो पावर का है। देखिए कौन किस पर कितना लीड ले पाता है। क्या हुआ बैठक में, एक एक जानकारी आपको देंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए।